Good morning. In last lecture, we studied the number of things under motivation, and one theory of motivation is completed. Today, we have the second theory of motivation, and it's X and Y theory. It is the most important theory in time of motivation, work, and also become a manager. As a manager, your work is as an X and Y theory. In short, what is X theory and what is Y theory? तो एक शॉर्टकट बात यह है कि X the symbol like cross symbol. It means didn't like or not like or deleted work. जो हमें ज़्यादा पसंद नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है लेकिन करना पड़ता है. Like this work is X theory and just Y theory. Y theory is like V और उसके नीचे Y. अब Y में yes I am also interested in this work. Means all are accepted this work, like this one person and also this one person both are ready to work this. It is one thing. In short, in 1960 Maxwell and Galls are explaining X and Y theory. Let's start today's study of X and Y theory. Look here, मैक्स जॉर्जन थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई. कब उसने इंट्रोड्यूस किया? अभी बोला 1960. अब देखो उसने क्या बोला है. मेनी पीपल get greater satisfaction from their work, greater satisfaction their work and trade into the other may why as a burden. और बहुत लोग क्या एक्सप्लेन करते हैं कि the work is burden. देखो पहले ही बोला the both are x and y. अब y यानी the person is satisfied from work and x this the person is look like burden of this work. Okay, the question is motive has been studied as management. अब दोनों को जो मोटिव देने, मोटिवेशन पावर देनी, इंप्रूव करना उनका वर्क, उनको सर्वे करना है, उनके ऊपर वर्क करवा के लेना है, ये कैसे होगा? इट इज डिपेंड ऑन द सर्वे ऑफ द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द पर्सन कि वो कितना सेटिस्फाई हो रहा है, कितना बर्डन समझ रहा है. उस हिसाब से हम उसको समझा सकते हैं कि ये काम इस तरह से करेंगे देन बेस्ट, इस तरह से करेंगे देन इट्स नॉट बेस्ट फॉर यू. ओके, then next, the question of motivation has been studied in management theory and social psychologists of decided attempt identify the social approach of management. Social psychologist Dougal Margons explained the two concept theory of human motivation of management in 1960s, the X theory and Y theory. Margins promoted the theory Y as the basis of good management. Good management यानी जो satisfy उन लोगों के लिए जो management किया जाएगा, because the person are satisfied. अगर वो खुश है, वो तुमसे काम करना चाहता है तुम्हारे साथ, तो तुम्हारी जो planning रहेंगी with him रहेंगी, with her रहेगी. But if the person is not interested, your management is with him or with her रहेगा, लेकिन you are thinking that ये this time completed or not. Assumptions are there. Assume नहीं जाएगा. देखो उसने बोला है उसके इसमें. And X theory and the Y theory. The basis of good management practice promotion that the assuming work are not merely devised into the company mechanism. As theory, exterior organization seems to believe. Exterior इसके seems to believe यानी वो कितना believe करता है, वो कितना burden समझता है, वो कितना work समझता है, इसके ऊपर depend होगी. The theory look at how manager participation of how motive is her terms member affected by her behavior. It's like the X theory is affected on the behavior. The good behavior, it is Y theory, and the bad behavior is depending on X theory. In short, the theory is distributed like this. The behavior is like this. In the way of X theory, the behavior like need to be controlled. कि उस बंदे को कंट्रोल करना पड़ेगा, वो खुद तो काम नहीं करेगा, दूसरों को भी काम से दूर भगाएगा. बट इन वाई थ्योरी want to be involved, वो ready रहेगा to involve with you, involve in your work, involve in your business. सेकेंड पॉइंट में देखो उसने फिर से बोला हुआ है द एक्स थ्योरी डोंट लाइक योर वर्क. वो कभी तुम्हारे काम को पसंद नहीं करेगा, वो तुम्हारे कभी ऑर्डर्स फॉलो नहीं करेगा, इज नॉट एक्सेप्टेड इन योर ऑर्डर्स एंड ऑल ऑन. एंड ऑल्सो कैन थिंक हिमसेल्फ, वो तुम में थिंक करेगा, तुम्हारे बारे में सोचेगा एंड मेक डिसीजन एंड ऑल्सो डिसीजन लेगा.
कौन से डिसीजन बनाएगा? टू वर्क विथ यू, टू इन्वॉल्व इन योर बिजनेस, टू इन्वॉल्व विथ यू, टू ग्रुप एक्टिविटी, टू योर ऑर्डर्स एंड ऑल्सो दे हैव फिर से उसने क्या बोला है? नीड टू बी पुश टू बी मोर। वो पुश करेगा टू बी मोर, और ज्यादा हो जाए, और ज्यादा हो जाए। क्या और ज्यादा हो जाए? नॉट वर्क, टू डिमोट योर वर्क, उसको डिमोट करेगा। तुम्हारे साथ जितने भी लोग हैं उनको दूर करेगा, यहाँ तक कि खुद तो भड़का हुआ रहेगा, दूसरों को भी भड़काएगा। एज कंपेयर टू शी ओन ओनरशिप ऑफ टास्क, इसकी ओनरशिप क्या रहेगी? कि उसको दिया हुआ काम। इसकी ओनरशिप क्या रहेगी? इसको मिला हुआ पोजीशन। द बोथ आर डिफरेंट। नीड टू इंसेंटिव स्कीम, वो कभी भी इंसेंटिव, ज्यादा पैसे कैसे मिल रहे हैं, ज्यादा पैसे काम करने का है, ज्यादा इन्वॉल्व क्या है एंड ऑल, इसके अंदर फंसा हुआ रहेगा। एज कंपेयर टू रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेरी वराइटी ऑफ टास्क, ये खुद से वराइटीज बनाएगा, टास्क बनाएगा और उसके ऊपर रेम्यूनरेशन के ट्राई करेगा। बट इसका रेम्यूनरेशन रिवार्डिंग की हुई कि नंबर ऑफ टास्क आर जनरेटेड, नंबर ऑफ आइडियाज जनरेटेड, इनकम जनरेटेड, प्रॉफिट जनरेटेड, देन आल्सो रिवॉर्ड्स आर जनरेटेड। यार ये कंपनी कब सोचेंगे मेरे बारे में, मेरी सैलरी कब बढ़ेगी, मैं सैलरी बढ़ेगी तो ज्यादा काम करूंगा, वरना मुझे इंटरेस्ट नहीं है, नहीं ऐसे सोचते बैठेगा। हैव टू बी डायरेक्टेड टू द थिंग दैट दे डोंट एंजॉय। इसके अंदर ये ऐसे डायरेक्टेड बनाएगा, ऐसे लोग बनाएगा जो जरा भी इंजॉय करना चाहते हैं। कैन एंगेज इन सम लेवल ऑफ सेल्फ, कैन एंगेज इन सम लेवल ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट एज कंपेयर टू अदर मैनेजमेंट। In short, the X theory and Y theory is telling you about the thinking of your mind regarding to your getting work. The X theory is explaining to you regarding to work, like you are not interested with work, you are not engaged with work, you are not ready to work this and all. And also like these people, but for salary work there. But the salary work there and they are demotivated to other person, they are demotivated to other person. As compared to the Y theory, it is ready to involve, think yourself, think themselves, वो खुद का भी सोचेंगे, वो दूसरों का भी सोचेंगे, and also work ready for work. This person and this person both are worker in one organization, but number of way are there. X30 person are hazardous for us. They are not ready to work. तो तुम्हारे production, effect on profit, effect on your future oriented plan, and also that. And why theory person? It is involved in your business. They are affecting you and your business, also affecting profit, generator of work, and also the number of plan is there. Okay, in briefly, your Ayurveda studies in next point, your management style is strongly influenced by your belief and assumption. But what motive member are your term? क्या term है? If you believe that team members dislike work, you will tend towards unauthorized style of management. On the other hand, if you are assume that employees take pride to doing good job, you will tend adapt to more participation style. In briefly, what is theory X? The part theory X, the theory X is assumption that employee of naturally unmotivated and dislike working and encourage an authorized style of management. According to the view of management, must actively interview get that thing doing style management assumption in the workers. So क्या करते हैं? Dislike of working. अभी मैंने एक्सप्लेन किया डिसलाइक ऑफ वर्किंग, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नीड टू बी डायरेक्टिंग, हैव टू बी कंट्रोल फोर्स एंड थ्रेटन टू बिलीव व्हाट नीड, हमें क्या जरूरत चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, उसके ऊपर एक पावर ऑफ जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर बिकम अ मैनेजर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट का कोई तुम्हारे पास छोटा सा काम आ जाए, तो तुम्हारे ईगो को हर्ट होता है। अरे आई एम इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेजमेंट, माय वर्क इज टू हाउ टू प्रोड्यूस मैक्सिमम प्रोड्यूस गुड्स एंड ऑल, एंड द एक्स डिफरेंट एक्स वाई जेड पर्सन इज सेल्स डिपार्टमेंट, आज जो एब्सेंट है तो मैं क्यों देखूं उसका काम। it is it is the conflicts is there and the production is there, but sales is not there, and the production हो सेल होगा, अगर सेल नहीं हुआ तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो तुम्हारे वर्क की सैलरी निकलने वाली है क्या, तेरा काम होने वाला नहीं। दिस एक्स थ्योरी ओके नीड्स टू बी सुपरवाइज टू एवरी स्टेप, हर एक चीज को सुपरवाइज करता है, वहां पे गलतियां ढूंढते रहेगा।
with control put place, need to be enticed to proceed the result, otherwise they have to ambition increasing to X type organization, यानी X type theory organization to be top heavy, to be top heavy with मैनेजर्स हैवी विथ यानी वो कभी भी यानी गुस्सेल हो सकते हैं, वो भड़क सकते हैं, एंड सुपरवाइज रिक्वायर एट एवरी स्टेप टू कंट्रोल वर्कर्स। यहाँ पे हमें कैसा होना चाहिए मैनेजर के साथ, या मैनेजर एज अ पोस्ट ऑफ मैनेजर तुम्हें सुपरवाइज करना चाहिए कि कौन किस कैसे झगड़े लगा रहा है, क्या लगा रहा है, उनके ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। delegation of authority but control remaining for अब कैसे merger says regarding to that X worker, X types worker are fact usually the minority, and yet in mass organizations such as large scale production involved, exterior management भी require can be unavoidable, उनको अवॉइड करना जरूरी नहीं है। उनको अवॉइड करना जरूरी नहीं है, बल्कि उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्यों ध्यान देना चाहिए? बिकॉज दे आर डीमोटिवेटेड योर वर्क्स एज कंपेयर टू द थ्योरी वाई। इसके अंदर देखो क्या बोला हुआ है, theory Y is explain the participation style of management that is decentralized. It is assuming that employees are happy to work, are self-motivated and creative and enjoy working. Great responsibilities assume that workers कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है एज अ मैनेजर वर्कर, क्योंकि अब यहाँ देखो चेंज है। पहले में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में थी? मैनेजर, बिकॉज वहाँ क्या होने वाले थे, ऐसे काम होने वाले थे जिसमें काम से दूर किया जाता है। तुम्हें वो टाइम पास कराना सिखाई गई, तुम्हारे फ्रेंड्स एंड ऑल। बट एज कंपेयर टू वाई थ्योरी, वाई थ्योरी में क्या है कि वर्कर्स इज आल्सो रेडी टू वर्क। देन वहाँ पे मैनेजर की जरूरत है क्या? कि अगर लोग ही रेडी है तो मैनेजर की क्या जरूरत है? मैनेजर रहेगा लेकिन जस्ट मोरल वर्क, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर मोटिवेट टू फुलफिल द गोल दे आर गिवन। उनको दिया हुआ काम जो रहेगा वही मोटिवेट रहेगा और उसी के ऊपर वो फाइट करेगा। seek and accept responsibility need much direction, consider work as nature part of life and solve work problem as imagination. This participation management style tends to be more widely applicable. In white type, this participation management style tends to be more widely lower level and organization is involved to decision make and have more responsibility. Comparing X and Y theory, the motivation of comparison करते हैं। The theory X is assume that the people dislike work, want to be avoid and do not want to take responsibility. Theory Y assume that the people are self-motivated and thrive on responsibility. Management style is control in theory X. Organization management in authorized and centralized control is reacted। अब देखो इसमें क्या होता है, एक एक देखते हैं। मोटिवेशन में क्या रहता है, वो जरा भी लाइक नहीं करते तो उसको मोटिवेट नहीं कर सकते। सेकंड में देखो क्या बोला हुआ है, मैनेजमेंट स्टाइल एंड कंट्रोल। इसमें मैनेजमेंट स्टाइल कैसा रहेगा? हायर रहेगा, वो तुम पे हर वक्त हावी रहेगा, तुम्हारी एक एक गलती में तुम्हें बुला के सुनाएगा एंड ऑल। सेंट्रलाइज रहेगा, ठीक है। द इन्वॉल्व्स द एम्प्लॉय डिसीजन ऑफ मेकिंग, हर एम्प्लॉय के डिसीजन में, कोई भी पार्टी हो कुछ भी, मैनेजमेंट आर इन्वॉल्व। उनको देखना होता है कहाँ जाके कैसे उनको डिसीजन बना रहे हैं, कहाँ मोटिवेट हो रहा है, डिमोटिवेट हो रहा है, हर जगह इन्वॉल्व रहेंगे। वर्क ऑर्गेनाइजेशन, काम की जगह पे थ्री एक्स एम्प्लॉयज स्टैंडिंग द स्पेशलाइजेशन आफ्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। इन थ्योरी वाई द वर्कर टेंड टू बी ऑर्गेनाइज अराउंड वाइडर एरिस, वो उसकी जगह क्या करेगा? वाइडर एरिस करेगा। skill of knowledge, employees are also encouraged to develop expenses and suggestion to improvement। स्किल और नॉलेज को देखते जाएगा, उसके इम्प्रूवमेंट के बारे में बोलेगा, यानी गलतियां निकाली जाएंगी और उसको सुधारने के लिए बोलेगा। देन रिवॉर्ड्स एंड appreciation, theory X organized work can be carrot and stick, basic and perform applicable is to part of the overall mechanism in control to a remuneration in theory Y organization, also the regular importance, but is usually to separate mechanism from organization control। Then application देखो क्या यूज है। Although the theory X management style is widely accepted and inferior to the other,
It has placed a larger scale of production, operation, and unskilled production line work. Many of the principle of theory Y is widely adopted by types of organization, the value and encouragement participation. Okay, here the application is done. He let's we started the next and last module and last concept, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. अभी जो हमने देखा लास्ट थर्ड मॉड्यूल में, ऑर्गेनाइजेशन मोटिव पावर्स, देन मोटिव कैसे किया जाता है, उनको कन्वर्ट कैसे किया जाता है, देन एक्स थ्योरी, देन वाई थ्योरी, एंड आल्सो सम मोटिवेशन प्लान्स which is necessary time of as a manager. Okay, तुम देखो एक बात बताता हूँ कि सबसे बड़ी बात ये है कि तुम अंडर एफएचएस जो फाउंडेशन तुम्हारा जनरेट किया जा रहा है यहाँ पे, लेट्स ट्राई बाय मी, तो हम कभी भी ये सोचेंगे कि हम जब ऑर्गेनाइजेशन में एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजमेंट में रहेंगे, तो ऑन दिस प्रोसेस जस्ट हम उस पोजीशन पे नहीं है. तो देखो हेनरी फेयर ने तुम्हें एक बात सिखाया, अथॉरिटी गेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. उस अथॉरिटी के साथ सम नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे अंडर बहुत से लोग रहेंगे. तो जब भी तुम जजमेंटल कोई आंसर लोगे तो उन लोगों को सोच के लेना होगा. फॉर एग्जाम्पल लाइक मी, तो जब मैं डिसीजन लूंगा रिगार्डिंग टू एफ वाई, तो एफ वाई के लिए डिसीजन लेते वक्त मुझे ये सोचना होता है कि मैं भी वहाँ उस क्लास में जाता हूँ फॉर एफ एच एस सिखाने के लिए. अगर मेरा डिसीजन रॉन्ग रहा या डिसलाइक टू स्टूडेंट रहा, तो आई नो कि स्टूडेंट्स नॉट रेडी टू स्टडी विथ मी. वो मेरी स्टडी को सुनना पसंद ही नहीं करेंगे, वो कभी भी मुझे क्लास में मोटिवेट नहीं करेंगे या सीरियसली लेंगे नहीं. यानी मेरा डिसीजन रॉन्ग है एज कंपेयर टू द अदर फैकल्टी. कभी भी सोचो तुम एज अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और तुमने कितना इंग्रेडिएंट कितना लेना है उस पर कभी व्यू ही नहीं लिया और वर्कर को बोला जो डालना है वो डाल दे, एंड वर्कर इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ शुगर्स, बहुत मीठा हो गया, लेस शुगर लेस मीठा हो गया, द प्रोडक्शन इज नॉट गुड एंड इफेक्टेड ऑन एनी ऑर्गेनाइजेशन. तो इसीलिए उसने पहले मोटिवेट करना है, उसके बाद अभी डेवलपमेंट की बात करना. क्यों? क्योंकि जो मेन पहली बातें थी, जैसे पहले इंडिविजुअल को बदला, फिर ग्रुप को बदला. फर्स्ट मॉड्यूल इंडिविजुअल स्टडी थी, सेकंड ग्रुप स्टडी, देन मोटिवेट किया. इंडिविजुअल को भी मोटिवेट किया जा सकता है, ग्रुप को भी मोटिवेट किया जा सकता है, एंड द लास्ट मॉड्यूल ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. अब इंडिविजुअल भी डेवलपमेंट कर सकता है, ग्रुप भी डेवलप हो सकता है, इसलिए डायरेक्टली. एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट देखो उसने बोला हुआ है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट फर्स्ट विद थिंकिंग अबाउट स्ट्रेस. क्या होता है स्ट्रेस और उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है बाय पॉजिटिव थिंकिंग एंड ऑल. देखो खुश रहना ही सबसे बड़ी बात होती है. लेट्स स्टार्ट. तो इन दिस स्टडी वी आर द फर्स्ट पॉइंट, द इंट्रोडक्शन, organizational development. The word OD, the number of times the OD are generated here, it is the stand for organizational development. उसको समझ के, यानी कहीं पे भी मैंने OD रीड किया तो इज नॉट OD, इट्स organizational development. I need to try to speak organizational development. Okay, let's start. Organizational development has been the widely used and recent year in approach to the introduce plan change in organizational system. Survival responsibility have different organizational development in different way. देखो उसने पहले ही बोला हुआ है कि हर जगह डिफरेंट वे है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के जो सर्वाइव किए जा रहे हैं. Definition of OD या organization development. He stand like organization development it's effort plan, क्या एक planning है, wide and management for the top increasing organization system. अब इसी organization development process, yeah, let's start. Plan process to develop the organization to be more effective in acquisition of decision goal. अभी जो डिसीजन या गोल इन फ्यूचर गोल है उसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज कंपल्सरी. अब डेवलपमेंट में क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इट इज स्टडी ब्रीफली इन दिस मॉडल. ओके, दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट. क्या ऑब्जेक्टिव होंगे?
तो देखो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड सपोर्ट अमंग ऑर्गेनाइजेशन मेंबर. अब ऑर्गेनाइजेशन मेंबर क्यों बोला हुआ इसने? व्हाई यूज द मेंबर वर्ड? बिकॉज जब वर्ड ऑर्गेनाइजेशन आता है तो नॉट ओनली वर्कर, नॉट ओनली मैनेजर, also established person, एंटरप्रेनर सबके बारे में डिस्कस करेंगे. क्योंकि सब लोगों का सबका वन मोटिव होना चाहिए, द वन ऑर्गेनाइजेशन वन मोटिव, और उस मोटिव के ऊपर वो लोग चलना चाहिए. One person can change the planning or change, and as per this planning the two way are generated and two different way are affected on your organization. The increase the insight confrontation of organization problem both within groups and among group in contract to swiping प्रॉब्लम अंडर. अभी बोला कि अगर दो डिफरेंट हुए तो स्वाइप होगा, दो डिफरेंट आइडिया होंगी, दो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, दो डिफरेंट, you know, to create the environment in which authority is assigned role to accumulate the authority based knowledge and skill. हमें कैसे क्रिएट करना है, असाइन करना है खुद को या ऑल एम्प्लॉय को? नॉलेज बेस एंड स्किल बेस, ये दो चाहिए. जस्ट थेरोटिकल पर्सन नहीं चाहिए जो रट्टा मार के पास हो रहे हैं अभी तक. उनके लिए ये सेंटेंस वर्स है. ऑर्गेनाइजेशन कभी तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कितना ही टॉप लेवल पे जाओ, कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे. और एक्सेप्ट करने के बाद उनको कभी तुमसे बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज तुम्हें यू नो आइडिया, यू नेवर द आइडिया टू डन द वर्क, बिकॉज तुमने प्रैक्टिकली कभी किसी चीज को छुआ नहीं हो. लेट्स अ सिंपल एग्जांपल. अगर मैं किसी को ऐसे डायरेक्टली वर्क दे दूं कि टुमारो यही लेक्चर तुम में से कोई एक सिखाना पसंद करेगा क्या, ये पीडीएफ मैं उसे फॉरवर्ड करूंगा, देन यू रेडी टू एक्सप्लेन. जूम पे सिखाना है लाइव, टाइमिंग शुरू होगी, सिखा देना. कितने स्टूडेंट सुन रहे हैं उसके ऊपर कोई टेंशन नहीं, इन्वॉल्व कोई नहीं होगा. तो नो वन कैन इंटरेस्टेड, आई नो दैट नो वन कैन इंटरेस्टेड. एक दो कोई इंटरेस्ट रहेगा जो घर में क्लास वगैरह लेते होंगे, तो उनको पता है हाउ टू टीच दैम, वो रेडी होंगे. बिकॉज कि जो स्किल ऑफ टीचिंग या स्किल ऑफ प्रेजेंटेशन या स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, ये जो है वो तुमने सिर्फ थेरोटिकल सुने. प्रेजेंटेशन ये वर्ड थ्योरी में कहीं तो ग्रुप में कहीं ग्राफ में आ गया, वहाँ स्टडी से किया हो गया. देन नॉलेज ये सिर्फ सुना है, होता क्या है हमने देखा नहीं, ट्राई नहीं किया खुद पे, है ना. तो ये तुम्हें ट्राई करना है, खुद को जज करना. इट्स द मेन थिंग टू इंक्रीज द ओपननेस ऑफ कम्युनिकेशन laterally, vertical and diagonal, to increase the level of personal attention and satisfaction in the organization, to find singering solution of problem. 2 plus 2 equal more than 4. ऐसे प्रॉब्लम बनाने कि दो और दो चार नहीं होने चाहिए, या दो और दो मिलके पांच होने चाहिए. इट मीन्स कि मैथमेटिकल सीन नहीं है. इट मीन्स दो मिलके अगर एक दिन में प्रोडक्शन लेवल 5 यूनिट किया और दो उसमें लाते हैं तो चार हो गए, तो उनसे प्रोडक्शन की यूनिट चार, दो से पाँच तो 10 नहीं, कम से कम 12 तो भी होनी चाहिए. बिकॉज वो एक दूसरे को मोटिव कर रहे हैं, टाइम स्प्रिट ज़्यादा हो रहा है, वर्कर ज़्यादा है, तो जो मेन वर्क है वो मैक्सिमाइज हुआ रहेगा, प्रोडक्शन हाई हो सकता है. बट रिवर्स वर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन में. जब एक रहता है तो ज़्यादा काम करता है, एक से ज़्यादा हो गए तो दोनों बातें करने में टाइम वेस्ट करते हैं और काम कम होता है. इसीलिए उसने बोला टू फाइंड सर्जनिस सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन ढूंढो जो 2 और 2 4 और मोर करें. क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूशन अभी तक मिलना बाकी है. ओके, देन ऑन इंटर ऑर्गेनाइजेशन इंटर विजन. अब देखो क्या विजन होते हैं. विजन है द मेन मोटिव ऑफ योर वर्क. द इंटरविजन इज द procedure to organization development cluster consult use after diagnosing an organization situation and providing the feedback to management to address the organization problem or positive future. Such as such interviews may be in the format of special structure, changes, working of conflicts, team building, in the participation, department, work to depth, etc. Each interview required to detail plan. Following are the organization development intervention techniques. अब देखो क्या होता है. Elimination of hierarchical decision making. जो decision making हुई उसमें elimination. When the create the development changing in organization, the responsibility of
decision making should shift from being to the task decision to manager to one that all the employees share in healthy organization. Manager understand that decision making should occurs when, अब इसके लिए सिंपल एग्जांपल देता हूँ। 12th में तुम्हें हुआ होना तो चाहिए, सिखाया कि नहीं पता नहीं मुझे। तुमने शेयर के टाइप्स में एक बात सुनी होगी, and this type is shares to worker, या वो टाइप ये भी हो सकती है। एम्प्लॉय इन्वेस्टमेंट इन शेयर कैपिटल। एम्प्लॉय इन्वेस्टमेंट इन शेयर कैपिटल। अब ये कंसेप्ट क्या है? इन दिस कंसेप्ट द नंबर ऑफ employee also your organization shareholder। अब इस कंसेप्ट को डीपली स्टडी करेंगे तो तुम्हें ये बात पता चलेंगी। एक शेयर होल्डर के बारे में सोचो, एम्प्लॉय के बारे में, तो वो क्या चाहता है? he or she want dividend, ओके। देन सेकेंड वो क्या चाहता है? मैक्सिमम रेट मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू जितनी होगी उतना मेरा बेनिफिट होगा। अब ये चीज उसके बाद और क्या चाहता है वो? हाई रेट ऑफ सेल, सेल ऑफ दिस शेयर बिकॉज द मैक्सिमम प्रॉफिट इन फ्यूचर। और देखो क्या चाहते हैं शेयर मार्केट में, तुम क्या जानते हो? याद आ रहा है? फेस वैल्यू, और देखो क्या चाहता है वो? ऐसे नंबर ऑफ ये चीजें। अगर आउट ऑफ द बिजनेस पर्सन जो तुम्हारा शेयर होल्डर है वो इतनी चीजें तुम्हारे बारे में सोचता है, लेकिन मुझे बताओ ये चीजें कब कंप्लीट होने वाली है? इट इज हर्षद मेहता की स्कीम देखे होंगे तो उसके अंदर बताया होगा कि वो स्ट्राइक के बारे में बताया, एम्प्लॉय स्ट्राइक के बारे में। इट मीन्स द नंबर ऑफ, देखो अब मैं इस पे फिर से डिस्कस करता हूँ। तो वन से कंसेप्ट ऊपर की चार बातें कब कंप्लीट होने वाले? फर्स्ट, इफ प्रोडक्शन होगा, प्रोड्यूस गुड्स, प्रोडक्शन होने के बाद सेकेंड सेल्स होगा, थर्ड प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए हमें? एम्प्लॉय का वर्क चाहिए, एम्प्लॉय काम करेंगे। फोर्थ वन, एम्प्लॉय काम करने के बाद हमारा मार्केट कैप्चर या एडवर्टाइजमेंट सिस्टम या प्रेजेंटेशन सिस्टम जो है ऐसा होना चाहिए कि लोग इंटरेस्टेड टू बाय योर गुड। फिफ्थ वन, यानी इन शॉर्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशन वर्क ऐसा होना चाहिए जिससे लोग कहे दिस कंपनी इज बेस्ट। अब इफ द आंसर इज देयर कि ये चीजें जो है वो करने वाला कौन है? दिस वन पर्सन, एम्प्लॉय। ये चीजें करने वाला है कौन? तो एम्प्लॉय। अगर ये चीजें एम्प्लॉय करने से एक आउटसाइडर को बेनिफिट होता है बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर, वही बेनिफिट अगर मैं इसी एम्प्लॉय को सस्ते में शेयर बेच के दिया तो जो मैं 100 रुपीज का शेयर बेचने वाला था, आउटसाइड
if the share is rate of 100 rupees at market value, if I sell inside at rupees 75 रुपीज, फेस वैल्यू 10 रुपीज है मुझे पता नहीं, तो वो जो 25 रुपीज का उस वक्त मैं लॉस एक्सेप्ट कर रहा हूँ, दिस लॉस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट। कैन आई एक्सप्लेन यू कैसे हो, बताता हूँ। अगर ये 75 रुपए में किसी एम्प्लॉय ने मुझसे शेयर खरीदा, तो उसके टू माइंड बनेंगे, उसके दिमाग में दो बातें रहेगी। कौन कौन सी बताता हूँ। फर्स्ट, उसके बाद दो बातें रहेंगी कि फर्स्ट, प्रोडक्शन इज मस्ट, ओके, एंड सेकेंड, प्रोडक्शन क्यों जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे ऑन दिस प्लेस, ऑन दिस ऑर्गेनाइजेशन, माय शेयर कैपिटल, मेरा शेयर है। अब अगर मेरे शेयर है, प्रॉफिट किसका है, मेरा है। अब मेरा प्रॉफिट है तो वर्क मुझे किसे करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। इन मीन्स ट्वाइस वर्क आर देयर। एज ए एम्प्लॉय वो तुमसे प्रोडक्शन करेगा, एज अ शेयर होल्डर वो तुमसे उसकी डिटेल भी लेगा, और ये डिटेल उसको बेनिफिट देती है। इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट स्कीम भी बोल सकते हैं इसे हम लोग। ओके, वही बात उसने या एक्सप्लेन करने की कोशिश है। देखो क्या बोला है, तो क्या बोला है उसने, इन हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर अंडरस्टैंड दैट डिसीजन मेकिंग should occurs within the source of information which is not always toward to talk to the chain command। अब इसके ऊपर क्या बोला है उसने, टास्क डिसीजन मैनेजर वन टू दैट ऑल द एम्प्लॉय शेयर। एम्प्लॉय शेयर यानी ऐसा बना जिससे ऑल एम्प्लॉय शेयर का बेनिफिट है। Because the team making organization, not just individual change, must primarily focus on group, focusing on group। अब ग्रुप के ऊपर फोकस करना है, कौन से ग्रुप, वर्किंग या वर्किंग ग्रुप। तो because of team makes up the organization, not just individual change must primarily occur in group in order to make the difference in culture group within the organization must have clear understanding about the purpose, mission and goal as well as purpose of organization of company। इसके अंदर हमें डिस्कस करना है। ओके, देन बिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट, हमें किसकी, ट्रस्ट की, दूसरों के ऊपर भरोसे की बिल्ड करना है। एक ऐसा एक दीवार खड़ी करनी है जिसको कोई तोड़ ना सके। अब कौन सी दीवार, तो ट्रस्ट की, हमें एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। कानाफूसी नहीं करनी है कि ये ऐसा बोल रहा था वैसा, जो उसने बोला है ना मे भी हो सकता है। ओके, यू आर राइट, यू आर राइट। देन रिड्यूसिंग ऑफ अननेसेसरी कॉम्पेंसेशन, अननेसेसरी कॉम्पेंसेशन यानी झगड़े, या इन शॉर्ट नाश्ते के लिए जाना, उधर ही बैठे रहना, छोड़ बाद में करेंगे, ये थिंकिंग है ना, दैट रिड्यूस दैट। अब कैसे रिड्यूस होंगे, अगर एम्प्लॉय शेयर इज दैट, एम्प्लॉय खुद को समझते हैं कि मैं हिस्सा उस कंपनी का, तो वो खुद को रिड्यूस करने लगेंगे। देन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग इन एम्प्लॉयज, देखो अभी ये बात फिर से आई। ओके, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया, मोटिवेशन गोल रहेगा, प्रोवाइडिंग फीडबैक देना, देन उसकी एक्टिविटी में लेना, उसको बताना कि तू ही रियली ओनर तू है, कि तू काम कर रहा है तो सबका पेट भर रहा है, तो यू आर द मेन पर्सन एंड ऑल। द इंटरिम मेजरिंग ऑफ कंट्रोल, द एक्शन ऑफ एक्टिव एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, हर जगह पे उसको एक्टिव। अब एक्टिव पार्टिसिपेशन कब होगा, जब वो फील करेगा कि वो चीज़ उसकी, और फील कैसे करेगा, इफ शेयर उसके नाम पे थोड़ी सी लिख दो, जो मार्केट में बेचने वाले उसको ही बेच दो, द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। ओके, then the next point, stress, is started from the next lecture, stress and stress management। Okay, all of you, thank you।